The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. With this beautiful thought, I, Priyanka Arora, welcome you all to the virtual classroom of mathematics. So all my dear students of class 5th, we were doing chapter number 9, time. And in my last video, I have given you the explanation of exercise 9A. I suppose you all must have gone through that video. And today in this video, I will be explaining you exercise 9B. In exercise 9A, I have explained you how to convert the bigger units of time into smaller units. So today we will be doing opposite of it. So let's begin with it. So students, exercise 9B, and in this exercise, I am teaching you how to convert the smaller units into bigger unit. And to convert smaller units into bigger unit, we always divide. Okay, so the mathematical operation which will come in use here is division. In previous exercise, I have taught you how to convert the bigger unit into smaller unit. There we have used the mathematical operation multiplication, and here we will be using the mathematical operation division. Fine. And as I told you in my previous video also, that the similar formulas will come into use in exercise 9A and 9B. So those three formulas only will come into use in this exercise also, and that three formulas are, first formula is 1 day is equals to 24 hours. एक day में 24 hours होते हैं. 1 hour is equals to 60 minutes. Then third, 1 minute is equals to 60 seconds. There we have converted days into hours, hours into minutes, and minutes into seconds. In this particular exercise, we will be converting hours into days, minutes into hours, and seconds into minute. Okay. So keeping these three formulas in mind, we'll begin with question number first, and it is convert the following into days and hours. जो भी units given है उसको हमें days और hours के अंदर convert करना है. So see students, I am beginning with part A. It is given as 468 hours. 468 hours given है, इसको हमें days के अंदर convert करना है. Okay, तो फॉर्मूला लगेगा डेज और आर का. सो 1 day is equals to 24 hours is the formula. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो आर्स है वो है स्मॉलर, आर्स स्मॉलर होता है, और डे जो है वो बिगर यूनिट होती है दिन की. ओके, डे के अंदर आर्स होते हैं. ओके, तो डेज को आर्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस स्मॉलर यूनिट आर्स को बिगर यूनिट डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम करेंगे डिवाइड. ओके, अब डिवाइड करेंगे किससे और किसको डिवाइड करेंगे, तो जो क्वेश्चन वाला नंबर होता है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नंबर गिवन है 468, तो इस 468 को हम करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करेंगे किससे, फॉर्मूला वाले नंबर से. तो फॉर्मूला वाला नंबर है यहाँ पे 24. सो 468 को हम डिवाइड करेंगे 24 से. Pay attention here. I have done the working. You also have to show this working in your notebook in the rough column. It is 468 will come inside the division format, and outside the division format will come 24. Okay. अब 24 2 digit number है यहाँ पर, तो अंदर भी हम 2 digit number पहले कंसिडर करेंगे. सो 46 देखिए आप, 24 की टेबल में 46 नहीं आता है. 46 के नियरेस्ट नंबर आता है 24 ओनली वन टाइम, बिकॉज 24 टू टाइम्स हो जाता है 48. तो हम वन टाइम ही लेंगे. आप टॉप में लिखेंगे नंबर 1. 24 वनजा हमने यहाँ पे लिया 24. 6 में से 4 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 2, और 4 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा आपके पास में 2. नेक्स्ट, ये जो 8 है इसको आप नीचे प्लेस करेंगे 22 के पास में, तो अब हो गया नंबर 228. अब 24 की टेबल में आपको फाइंड आउट करना होगा नंबर स्मॉलर देन 228. सो इट विल बी 216. तो यहाँ पर आ जाएगा 9 टाइम्स 216. तो टॉप में आप लिखेंगे 9 और यहाँ पर लिखेंगे 216. सब्ट्रैक्ट करिए, 8 - 6 is 2, 2 - 1 is 1, and 2 - 2 is
0, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 आवर्स। ओके, अब ये जो 468 था ये कौन सी यूनिट के अंदर गिवन था? ये गिवन था आवर्स के अंदर। क्वेश्चन हमारा किस में था? आवर्स में था, राइट? तो 468 के पास में आवर्स आया, तो हमारा जो रिमाइंडर भी बचेगा ना स्टूडेंट्स, वो आवर्स में होगा। और जो क्वेश्चन हमने फाइंड आउट करा है, क्योंकि हमने 24 से डिवाइड करा है, तो क्वेश्चन में लगेगा डेज। फाइन, तो हमारा आंसर डिवाइड करने के बाद में हो जाएगा 19 days and 12 hours. So this is how we have to solve this question. Okay. If you want for your help, you can create the table of 24. I have already taught you how to create the tables of 2-digit number. 2-digit की टेबल को हम easily कैसे create कर सकते हैं, मैंने आपको already मेरे वीडियो के अंदर explain किया था. So here if I discuss with you about how to create the table of 24, तो 24 की टेबल हम कैसे create कर सकते हैं using the rule of the table of 16 is firstly to write the table of 2 and to write the table of 4. तो अगर हम 2 की टेबल यहाँ पर लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, यहाँ पर हमने लिख दी 2 की टेबल, और इसी तरीके से हमें यहाँ पर 4 की टेबल लिखनी है साथ में, तो 4 की टेबल हो जाएगी हमारी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40, ये आ गई 2 और 4 की टेबल। इसकी हेल्प से जब हम 24 की टेबल क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 24, देन आ जाएगा हमारे पास में 48, देन 6 plus 1 is 7, so 72, then 8 plus 1 is 9, so 96, then 10 plus 2 is 12, so 120, then 12 plus 2 is 14, so 144, then 14 plus 2 is 16, so 168, then 16 plus 3 is 19, so 192, then 18 plus 3 is 21, so 216, and then 20 plus 4 is 24, so 240. So this is the table of 24. So by this you can create the table of 24 and then easily do the division sums. Okay. So here in the corner I am mentioning the table of 24 so that it will come into your use. So how to create the table 24, 48 I have already told you. So like this you can write your complete table here. So now let us move with part B now. It is 1030 hours. इसमें भी हमें hours को days में convert करना है, तो हम divide करेंगे. So question वाला number जो कि है 1030, इसको हम divide कर देंगे 24 से, formula वाले number से. तो देखिए यहाँ पे rough work के अंदर हमने divide करा है 1030. अब डिवीजन फॉर्मेट के बाहर दो नंबर है 24, तो अंदर भी हम दो नंबर देखेंगे, तो अंदर दो नंबर है 10. अब क्योंकि आपको पता है कि 24 की टेबल में 10 नहीं आता है, तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे 3 नंबर्स 103. 24 की टेबल में आप देखिए 103 से स्मॉलेस्ट नंबर जो आता है वो कौन सा होता है? 103 से स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पर नंबर 96. तो जो नंबर हम यहाँ पर यूज में लेंगे वो होगा 96, और 96 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है, तो टॉप में आप लिखेंगे 4 और 103 के नीचे मेंशन कर देंगे 96 को, देन सब्ट्रैक्ट करिए. सो 13 minus 6 will give you 7 and this will become 9. So 9 minus 9 is 0, so no need to mention 0 here. Now this 0 will come down, so it will become 70. अब 70 से स्मॉलेस्ट नंबर देखिए आप 24 की टेबल में, so 70 से स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ये 72 है 3 टाइम्स, तो स्मॉलेस्ट क्या आ जाएगा? 48. तो ये है 2 टाइम्स, तो टॉप में आप लिखेंगे 2 और यहाँ आ जाएगा 48. अब 70 में से आप 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, so 10 minus 8 will give you 2 and 6 minus 4 will also give you 2. और ये जो 1030 था ये था यूनिट आवर्स के साथ में. सो जो रिमाइंडर में बचेगा 22 उसके साथ में यही यूनिट आएगी आवर्स, और टॉप में जो क्वेश्चन के साथ में यूनिट आएगी वो होगी डेज. ओके, क्योंकि हमने इस स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट डे के अंदर कन्वर्ट कर दिया है डिवाइड करके, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 days and 22 hours. रिमाइंडर भी हमें मेंशन करना होगा. सो इस तरीके से इसका आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सी, एंड पार्ट सी इज 786 hours को हमें कन्वर्ट करना है डेज और आवर्स के अंदर. सो सी
हियर अगेन आवर्स को जब हम डे में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे? 786 को हम डिवाइड कर देंगे 24 से। सो सी 786 को हमने लिखा डिवीजन फॉर्मेट के अंदर और 24 को हमने डिवीजन फॉर्मेट के बाहर लिखा। टू नंबर्स आप देखिए 78 से स्मॉलर नंबर आता है 72, वो आता है 3 टाइम्स, तो आप टॉप में लिखेंगे 3 और 78 के नीचे आ जाएगा 72। सब्ट्रैक्ट करिए, 8 minus 2 is 6 and 7 minus 7 is 0, which we will not mention. Now this 6 will come down nearby 6 and now the number is 66. अब 24 की टेबल में वापस हम देखेंगे कि 66 से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 66 से स्मॉलेस्ट नंबर है 48 which is coming 2 times, तो हम टॉप में लिख देंगे यहाँ पे 2 और 66 के नीचे आ जाएगा 48। सब्ट्रैक्ट करिए, ये जो 6 है ये दूसरे 6 को बोरो देगा, तो ये 6 बन जाएगा 16। 16 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 और ये 6 बन जाएगा 5। 5 में से 4 को माइनस करेंगे आप आ जाएगा 1। 786 के पास में वापस क्या है? आवर्स, तो डिनोमिनेटर में जो यूनिट आएगी वो आएगी आवर्स और क्वेश्चन के अंदर यूनिट आएगी डेज, तो आंसर हो गया इसका 32 days 18 hours। ओके, सिमिलरली नाउ वी हैव टू डू पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर 790 आवर्स को हमें कन्वर्ट करना है डेज और आवर्स के अंदर, तो यहाँ पर हम 790 को डिवाइड करेंगे वापस 24 से, क्वेश्चन वाले नंबर को फॉर्मूला वाले नंबर से। तो 790 को आप रखिए फॉर्मेट के अंदर, 24 को फॉर्मेट के बाहर। नाउ 79 के नियरेस्ट 2 डिजिट नंबर टेबल ऑफ 24 के अंदर, सो 79 के नियरेस्ट आ रहा है यहाँ पर 72 विच इज कमिंग 3 टाइम्स, तो हम टॉप में लिखेंगे यहाँ पर 3 और 79 के नीचे हम मेंशन कर देंगे 72 को। 9 minus 2 is 7, 0 will come down. Now 70 से जो स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है 24 की टेबल में वो है नंबर 48, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 48 और 10 में से आप 8 को माइनस करोगे क्योंकि 7 ने 0 को बोरो दिया, तो ये हो गया 10। 10 minus 8 is 2 and 7 minus 7 बन गया 6, so 6 minus 4 is 2, so यहाँ पर आ जाएगा 22 hours और टॉप में हम मेंशन कर देंगे 2 because 48 is coming 2 times. Now 790 is given in hours, so denominator में 22 के पास में मेंशन कर देंगे हम hours और टॉप में आ जाएगा days. ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका 32 days 22 hours. फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कन्वर्ट करना है आवर्स और मिनट्स के अंदर। ओके, जो क्वेश्चन है वो मिनट्स में गिवन है और हमें इसको आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो मिनट और आवर्स का फॉर्मूला इसमें लगेगा। सो यू नो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है वो मिनट्स में गिवन है। ओके, और मिनट्स जो है वो क्या है? स्मॉलर यूनिट है और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? आवर्स के अंदर, और आवर्स क्या है? बिगर यूनिट है। सो स्मॉलर मिनट को जब हम बिगर आर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको करने के लिए भी हम करेंगे डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे किसको और किससे? तो जो क्वेश्चन वाला नंबर है यहाँ पर 500, इसको हम डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला वाले नंबर यानी कि 60 से। सो 60 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें चाहिएगी टेबल ऑफ 60। टेबल ऑफ 60 क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। पहले आप लिख दीजिए टेबल ऑफ 6 और फिर उसके आगे आप लगा देंगे 1 0। सो 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54 and 6 10s are 60। यहाँ पे हमने क्रिएट कर दी टेबल ऑफ 6। अब आप इसके आगे एक एक जीरो को ऐड कर देंगे टू क्रिएट द टेबल ऑफ 60। So see here I am putting 110 to create the table of 60. So now our table of 60 is ready. Now using this table we will do division. So see first है हमारा 500 minutes, तो 500 को हम division format के अंदर लिखेंगे और ये 500 मिनट के अंदर है, तो यहाँ पर मैंने पास में मेंशन कर दिया मिनट। तो जो यूनिट डिवीजन फॉर्मेट के अंदर है वही यूनिट हमारे रिमाइंडर के अंदर भी रिमेनिंग रहेगी। इसको हम 60 से जब डिवाइड करेंगे, सो 500 से स्मॉलेस्ट नंबर हमें देखना है 60 की टेबल में, तो 500 से स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास में 480 एंड विच इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। सो टॉप में आप मेंशन कर देंगे 8 और 500 के नीचे आप मेंशन कर देंगे 480। सिंपली अब आप सब्ट्रैक्शन कीजिए, आपको सब्ट्रैक्शन आता है। सो 500 में से जब आप 480 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 और यूनिट यहाँ पर मिनट ही लगेगी रिमाइंडर के अंदर और टॉप में आवर्स, बिकॉज
वी आर कन्वर्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन आवर्स एंड मिनट्स, तो रिमाइंडर में अगर मिनट्स है तो क्वेश्चन में आवर्स ही आएगा, तो आंसर हो गया इसका 8 hours 60 minutes. ओके, नाउ सी बी पार्ट 750 मिनट्स, इसको भी हमें आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। सो 750 को भी हम डिवाइड करेंगे 60 से। सो 750 को डिवीजन फॉर्मेट के अंदर लिखिए, 750 मिनट्स है तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया मिनट्स, और इसको जब मैं 60 से डिवाइड करूंगी तो मैं दो नंबर्स देखूंगी, क्योंकि फॉर्मेट के बाहर 2 नंबर्स हैं तो फॉर्मेट के अंदर भी पहले मैं 2 नंबर्स देखूंगी। तो 75 से स्मॉलेस्ट नंबर मुझे देखना है 60 की टेबल में, तो 75 से स्मॉलेस्ट आता है हमारा 60 और वो आता है 1 टाइम, तो हम टॉप में लिखेंगे 1 और 75 के नीचे हम मेंशन कर देंगे 60 को। अब सिंपली आप सबट्रैक्ट करिए, सो 5 - 0 is 5 and 7 - 6 is 1. ब्रिंग द जीरो डाउन, अब ये 15 के पास में जीरो आ गया। अब हमें 150 से स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए 60 की टेबल में, सो 150 से स्मॉलेस्ट नंबर आता है 120 विच इज कमिंग 2 टाइम्स, तो टॉप में आएगा 2 और 150 के नीचे आएगा 120। सबट्रैक्ट करिए, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 30 विच विल कम इन मिनट्स, क्योंकि यहाँ मिनट्स हैं तो रिमाइंडर में भी मिनट्स आएगा और टॉप में आ जाएगा आवर्स, तो आंसर हो गया हमारा 12 hours 30 minutes. सेम वे वी हैव टू डू पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर 2000 को हमें डिवाइड करना है 60 से, बिकॉज इट इज 2000 मिनट्स एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स एंड मिनट्स। सो सी 2000 को हम लिखेंगे डिवीजन फॉर्मेट के अंदर, 60 को लिखेंगे हम डिवीजन फॉर्मेट के बाहर, और फर्स्टली हम देखेंगे 2 नंबर्स, ब्रैकेट डिवीजन फॉर्मेट के बाहर 60 यानी 2 नंबर्स हैं तो अंदर भी हम 2 डिजिट्स देखेंगे 20। अब 60 की टेबल में 20 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स लेंगे, 200 लेंगे। अब 200 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आता है 60 की टेबल में, तो आता है 180। सो 200 के नीचे हम मेंशन कर देंगे 180। सबट्रैक्ट जब आप करोगे 200 में से 180 को तो आ जाएगा 20, जीरो विल कम डाउन, अगेन 200 आ गया, सो 200 से स्मॉलेस्ट अगेन 180 ही होगा 3 टाइम्स, तो 3 आप टॉप में लिखेंगे, 200 के नीचे 180, सबट्रैक्ट करिए आ जाएगा 20। क्योंकि ये 2000 मिनट्स के अंदर था, सो जो हमारा रिमाइंडर भी होगा 20 वो भी मिनट्स के अंदर आएगा और क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा आवर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 hours and 20 minutes. Okay students, now the last part here is part D, where we have to convert 905 minutes into hours and minutes. तो पहले हम hours और minutes का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर भी। Again students, please keep in mind to put the formula in each and every part is important for you and compulsory. You have to put the formula. Okay, so 1 hour is equals to 60 minute. यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में आप मेंशन करेंगे डिवाइड, और क्वेश्चन वाला नंबर है 905 तो इसको हम डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला वाले नंबर यानी कि 60 से। तो आप देखिए 905 को हमने डिवीजन फॉर्मेट के अंदर मेंशन करा है, मिनट्स है तो मैंने यहाँ मिनट्स मेंशन कर दिया है, और 60 को मैंने डिवीजन फॉर्मेट के बाहर मेंशन कर दिया है। अब आप देखिए क्योंकि डिवीजन फॉर्मेट के बाहर 2 नंबर हैं तो डिवीजन फॉर्मेट के अंदर भी हम 2 डिजिट्स लेंगे पहले 90, दैट मीन 60 की टेबल में 90 से स्मॉलेस्ट नंबर आता है 60 ओनली 1 टाइम, तो यहाँ पर हम टॉप में मेंशन कर देंगे 1 नंबर 1 क्योंकि 1 टाइम आता है, और 90 के नीचे हम मेंशन कर देंगे 60 को। 90 में से जब आप 60 को सबट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 30। अब ये जो 5 है इसको आप 30 के पास में प्लेस करेंगे तो नंबर अब हो गया है 305। अब 60 की टेबल में 305 के नियरेस्ट नंबर आता है 300, ओके, और वो आता है 5 टाइम्स, तो आप टॉप में मेंशन करेंगे 5 और 300 को आप सबट्रैक्ट कर लेंगे 305 में से। सो after subtracting you will get the remainder as 5 which will come in minutes, okay, and in top it will come in hours, so answer will be 15 hours and 5 minutes. Fine. Yes, see students, now question number third. Question number third में हमें convert करना है minutes and seconds के अंदर। question seconds में given है उसको हम minutes और seconds में convert करेंगे, तो इसमें लगेगा हमारा formula number 3, that is 1 minute is equals to 60 seconds. यहाँ पर जो सेकेंड्स है वो है स्मॉलर यूनिट और मिनट जो है वो है ग्रेटर यूनिट। यहाँ पर हम इस स्मॉलर यूनिट को जब ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सब पार्ट्स के अंदर डिवीजन करेंगे, और डिवीजन करेंगे किससे, 60 से, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो जो भी सेकेंड्स के अंदर गिवन है उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से ही डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर भी जो टेबल है वो 60 की ही यूज में आएगी। तो देखिए फर्स्ट है 870 सेकेंड्स। 870 सेकेंड्स को जब हम
मिनट्स के अंदर चेंज करेंगे तो 870 को हम लिखेंगे डिवीजन फॉर्मेट के अंदर और 60 को हम लिखेंगे डिवीजन फॉर्मेट के बाहर, क्योंकि हम 60 से कर रहे हैं डिवाइड। अब 87 से स्मॉलेस्ट नंबर आता है 60 की टेबल में 60, तो आप ले लेंगे 1 टाइम यहाँ पर 60, तो टॉप में आप लिख दोगे 1 और 87 के नीचे 60, then do subtraction, you will get 27, bring this zero down, it will become 270, 270 से smallest number आता है 240 and it comes 4 times, तो जितने times आता है उसको आप टॉप में लिखेंगे, तो टॉप में लिख दिया आपने 4, 270 के नीचे आप मेंशन करेंगे 240, सब्ट्रैक्ट करिए आपका आंसर आ जाएगा 30। अब क्योंकि 370 जो था वो कौन सी यूनिट में था, सेकंड्स के अंदर था, तो रिमाइंडर में भी बच जाएगा हमारे पास में सेकंड्स, ओके, और क्वेश्चन में आ जाएगा मिनट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 मिनट्स 30 सेकंड्स। नाउ बी पार्ट के अंदर हमें करना है स्टूडेंट्स 965 सेकंड्स को मिनट्स के अंदर चेंज, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 965 को हम डिवाइड कर लेंगे 60 से, सो 965 आएगा डिवीजन फॉर्मेट के अंदर और 60 आएगा डिवीजन फॉर्मेट के बाहर। अब 96 से स्मॉलेस्ट नंबर 60 की टेबल में होता है 60, 61 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे 36, ब्रिंग दिस 5 डाउन, और 60 की टेबल में 6 टाइम्स आता है 360, सब्ट्रैक्ट करिए आ जाएगा 5, और रिमाइंडर के अंदर जो यूनिट आएगी वो आएगी सेकंड्स, और क्वेश्चन के अंदर जो यूनिट आएगी वो आएगी बिगर यूनिट, दैट इज मिनट। So 16 minutes and 5 seconds is the answer of part D. Same way you have to do part C and part D. Same ही करना है, आपको फॉर्मूला पुट करना है और फिर डिवाइड कर देना है 60 से. So these two parts you can solve yourself because I have given the explanation of all the parts still here. Only you have to remember this thing that you have to do the division by 60 only because here 1 minute is equals to 60 seconds. तो 60 से डिवाइड करना है क्वेश्चन वाले नंबर को, तो आपको 60 की टेबल आनी चाहिए और डिवीजन आपको आता ही है। एक और बात ध्यान रखेंगे कि जो रिमाइंडर बचेगा वहां पर हमारी स्मॉलर यूनिट आएगी और जो क्वेश्चन होगा वहां पर हमारी बिगर यूनिट आएगी। तो मिनट्स और सेकंड्स में से जो स्मॉलर यूनिट होती है वो सेकंड्स होती है, वो रिमाइंडर में रहेगी, और क्वेश्चन के अंदर हमारी बिगर यूनिट यानी कि मिनट्स आ जाएगा। ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3rd। फाइन, नाउ I'm moving on to question number 4th. It is Manu spends 420 minutes every week walking in the morning. Manu हर week 420 minutes walk करने में spend करता है। Okay? मॉर्निंग वॉक करता है, मॉर्निंग वॉक करने में पूरे वीक में, आपको पता है वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज के अंदर टोटल वो 420 मिनट्स जो है वो वॉकिंग करता है। सो हाउ मेनी आवर्स डज ही वॉक एवरी वीक, तो हमें बताना है कितने आवर्स वो चलता है। जो क्वेश्चन है वो मिनट्स के अंदर गिवन है और हमें पूछा गया है आवर्स के अंदर, तो पहले आप दो यूनिट्स देख लीजिए, मिनट्स और आवर्स, तो दैट मीन्स जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो आवर्स और मिनट्स के बीच में बनेगा। तो आवर्स और मिनट्स में से ग्रेटर यूनिट होती है आर। 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो हमारा फॉर्मूला ये वाला लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर। पहले आप दो यूनिट्स हमेशा देख लीजिए कि कौन सी दो यूनिट्स गिवन है, उन्हीं दो यूनिट्स के बीच में पहले आप अपना फॉर्मूला फ्रेम कर लीजिए। अब देखिए स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टाइम स्पेंड्स बाय मनु एवरी वीक, कितना टाइम वो स्पेंड करता था 420 मिनट्स। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्जन करना है मिनट्स को आवर्स के अंदर, तो स्मॉलर यूनिट को यहाँ पर हम बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम करेंगे यहाँ पर भी डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे किसको, हम जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है 420, इसको हम डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला वाले नंबर यानी कि 60 से। सो 420 को हम प्लेस करेंगे डिवीजन फॉर्मेट के अंदर और 60 को हम प्लेस कर देंगे डिवीजन फॉर्मेट के बाहर। अब 6 की टेबल में 42 आता है 7 टाइम्स, तो 60 की टेबल में 420 आएगा 7 टाइम्स, तो 60 टॉप में आप लिख देंगे 7, 420 के नीचे आ जाएगा एग्जैक्टली 420, सो 420 में से 420 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा 0, और टॉप में मैंने बताया कि टॉप के अंदर बिगर यूनिट आती है, तो आवर्स और मिनट्स में से बिगर यूनिट कौन सी है, आवर्स, तो टॉप में आ गया आवर्स। दैट मीन्स जो आंसर आया डिवीजन करने के बाद में वो आया 7 आवर्स। तो जो मनु है वो पूरे वीक में 420 मिनट्स चलता है, इसको जब हमने आवर्स में कन्वर्ट करा तो हमारा आंसर क्या आ गया कि वो पूरे वीक में 7 आवर्स वॉक करता है। ओके, इज इट क्लियर? नाउ this is the last question of this exercise and it is a bus stops at a station for 240 सेकेंड। एक बस है जो एक पर्टिकुलर स्टेशन पर 240 सेकेंड्स के लिए रुकती है
फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज इट स्टॉप, तो हमें बताना है कि वो जो बस है वो कितने मिनट्स के लिए रुकी है उस स्टेशन पर। तो पहले आप देखिए स्टूडेंट्स के कौन सी दो यूनिट्स आ रही है क्वेश्चन में, एक आ रही है सेकंड्स और दूसरी आ रही है मिनट्स, ये दो यूनिट्स आ रही है। अगर सेकंड्स और मिनट्स आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, दैट मीन्स जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो सेकंड्स और मिनट्स के बीच में लगेगा। सो सेकंड्स और मिनट्स में से ग्रेटर होता है मिनट, तो पहले आप लिखेंगे 1 मिनट एंड 1 मिनट में आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकंड्स, इट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। तो ये लगेगा हमारा फॉर्मूला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए विद स्टेटमेंट हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो विद स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए आप मेंशन करेंगे सबसे पहले यहाँ पर अ बस स्टॉप्स फॉर 240 सेकंड्स, एक बस 240 सेकंड्स के लिए स्टॉप करती है। सो कन्वर्जन करना है हमें यहाँ पर सेकंड्स को मिनट्स के अंदर। तो फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स लगेगा, और सेकंड्स को मिनट में कर रहे हैं यानी स्मॉलर को बिगर में कर रहे हैं, तो इसमें भी हम करेंगे डिवाइड। और किस नंबर को किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन में नंबर है वो है 240 और फॉर्मूला में जो नंबर है वो है 60। तो 240 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, 240 आ जाएगा डिवीजन फॉर्मेट के अंदर और 60 आ जाएगा डिवीजन फॉर्मेट के बाहर। और 60 फोरजा होता है 240, तो टॉप में आप मेंशन करेंगे 4 और 240 के नीचे आप मेंशन कर देंगे 240 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0 और टॉप में आ जाएगी हमारी बिगर यूनिट। तो मिनट्स और सेकंड्स में से बिगर यूनिट होती है मिनट्स, तो टॉप में आ गया मिनट्स। दैट मींस वो बस कुल मिला के मिनट्स के अंदर अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 मिनट्स बस वहां पर रुकी थी, और सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 240 सेकंड्स वहां पे बस जो थी वो स्टॉप हुई थी। Okay students, is it clear to you? So students, here I have given you the explanation of exercise 9B of chapter number 9, time. I hope you must have understood all the questions which I have explained you today. And today I have taught you how to convert the smaller units of time into bigger units of time. Please try practicing these kind of sums by yourself to understand it in a better way. Okay? So that's all for today. Now I'll see you back in the next video with one new exercise. Till then, please complete this work and take good care of yourself. Thank you, students.